So this is meeting number 2, and the topic is Solow model again. Okay. So last time जो setup था हमारे पास, it was that we had a production function. We have some initial level of capital, which is something positive. We have LT, which is equal to 1 for all time periods. Okay, that means there is no population growth. Okay, saving ratio is something positive, and there is delta, depreciation rate, which is also something positive. And we have to find steady state. ठीक है, ये सेटअप था हमारा. Now what if the production function is equal to minimum of LT and KT? Okay, तब हम इसके साथ कैसे डील करेंगे? How will we find steady state? Okay, so again we'll begin with our capital accumulation equation, right? Capital accumulation equation. तो कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन क्या कहती है? वो रिलेट करती है नेक्स्ट पीरियड के कैपिटल को करंट पीरियड के कैपिटल से कि ये मूवमेंट हो कैसे रहा है. सो KT + 1 इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा KT, that is undepreciated capital, plus investment, which is equal to saving ratio into output, which is equal to minimum of LT and KT. ठीक है. Okay, so before proceeding we need to know कि ये minimum function work कैसे करता है. Okay, so what we also know that or know here is that LT is equal to 1. तो मैं यहाँ पर LT 1 put कर सकता हूँ. So KT plus 1 will be equal to 1 minus delta KT plus saving ratio into minimum of 1 and KT. Okay, so how will this min function work? तो ये दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको लेगा. So that means it will be equal to 1 if KT will be more than or equal to 1. ठीक है, तो दोनों में मिनिमम 1 हो गया. And it will be equal to KT if KT is less than 1, right? So इसे मैं अपनी कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ. So KT plus 1 will be equal to 1 minus delta KT plus saving ratio into 1 if KT is more than or equal to 1, and it will be equal to 1 minus delta into KT plus S into KT if KT is less than 1, right? Okay, so इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. So 1 minus delta into KT plus S if KT is greater than or equal to 1, and it will be equal to 1 minus delta plus S into KT. ठीक है, यहाँ पर KT कॉमन आ जाएगा if KT is less than 1. Okay, so we need to find the steady state, right? Capital accumulation equation हमारे पास आ चुकी है. Now I can plot it, right? So I will plot
this capital accumulation equation. So we have KT on x-axis, KT plus 1 on the y-axis. ठीक है, ये मेरी 45 डिग्री की लाइन which shows that KT plus 1 is equal to KT. Okay. So we have to use these equations. तो ये जो कट ऑफ है यहाँ पर इट इज 1 कि 1 से पहले कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन अलग है, 1 के बाद इट इज डिफरेंट. तो मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ 1. तो इससे पहले I have to plot this part and after 1 I have to plot this part. Okay. So for KT less than 1 स्लोप क्या आएगी आपके पास? फॉर KT लेस देन 1 इक्वेशन है ये, सो दैट मीन्स स्लोप विल बी 1 माइनस डेल्टा प्लस एस. या राइट, ये आएगी स्लोप आपके पास 1 माइनस डेल्टा प्लस एस. सो डी KT plus 1 by dKT will be equal to 1 minus delta plus s. Okay. Now the thing is we don't know कि ये जो slope है ये more than 1 है या less than 1, right? It is not clear whether this is more than 1 or less than 1, and the reason I need to know this is because ये जो 45 डिग्री की लाइन है इसकी slope 1 है. Okay, so we need to know कि ये जो function है ये स्टार्ट कर, जब मैं इसे बनाना स्टार्ट करूंगा ये ऊपर से जाएगा, ये इसे कोइंसाइड करेगा या फिर ये नीचे से जाएगा. एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज जहां पर भी ये कट करेगा इस लाइन को वो हमारे स्टेडी स्टेट होंगे, राइट? सो वी नीड टू नो कि ये ऊपर से निकलने वाला है, नीचे से निकलने वाला है या फिर ये कोइंसाइड करेगा. ओके, तो वो चेक करने के लिए आई नीड टू मेक केसेस. ठीक है, सो case 1 can be that if 1 minus delta plus s is greater than 1. ठीक है, अगर स्लोप मोर देन 1 होगी तो वो क्या केस बन रहा है? दैट मीन्स सेविंग रेशियो इज ग्रेटर देन डेप्रिसिएशन रेट. ओके, तो अगर ऐसा होगा तो कर्व कैसा बनेगा? ये आपकी 45 डिग्री की लाइन है, 1 यहां पर है, 1 से पहले जब मैं उस इक्वेशन को ड्रॉ करूंगा तो वो जाएगी ऐसे. ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, 1 माइनस डेल्टा प्लस एस इज कांस्टेंट. ये जो 45 डिग्री की लाइन है इसकी स्लोप है 1. यहां पर ये जो स्लोप है वो है 1 माइनस डेल्टा प्लस सेविंग रेशियो विच इज ग्रेटर देन 1. तो मोर देन 1 है तो 45 डिग्री की लाइन से इट विल बी स्टीपर. ठीक है, केस 2 कैन बी दैट व्हाट इफ दिस स्लोप इज less than 1. That means saving ratio is less than depreciation rate. Okay, तब क्या होगा? Well then, क्योंकि स्लोप लेस देन 1 है, 45 डिग्री लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल टू 1 है, तो लेस देन 1 वाली जो लाइन होगी इट विल बी फ्लैटर. ओके, तो ये इस बार नीचे से निकलेगा एंड विल हैव अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट. ओके, ओके, तो यहाँ पर ये जो स्लोप है इट इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा प्लस सेविंग रेशियो विच इज दिस टाइम लेस देन 1. हमने केस वही लिया है जहां पर इट इज लेस देन 1. सिंस इट इज लेस देन 1 सो इट विल बी फ्लैटर देन दी 45 डिग्री लाइन. ओके, केस 3. वेल व्हाट इफ दिस स्लोप इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1? वेल दैट मीन्स saving ratio is exactly equal to depreciation rate. And then when I'll plot this capital accumulation equation, 45 डिग्री लाइन जो है उसकी स्लोप भी 1 है और कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करूंगा वो भी 1 पॉइंट तक, when KT is equal to 1 उस पॉइंट तक वो भी उसकी भी स्लोप 1 है. दैट मीन्स एट दैट टाइम इट विल कोइंसाइड. ठीक है, क्योंकि दोनों ही
इक्वेशंस की जो स्लोप है वो इक्वल टू 1। ओके, तो इस केस में वो कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो एक एक करके तीनों केसेस में चेक करते हैं कि स्टेडी स्टेट कहां पर आ रहा है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद केस 1, जहां पर सेविंग रेशियो इज ग्रेटर देन डेल्टा। ओके, तो उस केस में क्या होगा? एक्स एक्सिस पर है केटी, वाई एक्सिस पर है केटी प्लस 1। वी नीड 45 डिग्री लाइन फॉर आर रेफरेंस, कि हम ये चेक करने के लिए कि ये जो कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन है वो 45 डिग्री लाइन को कहां पर कट करेगी। ओके, सो जहां पर भी वो कट करेगी या टच करेगी, दैट विल बी आर स्टेडी स्टेट। ओके, नाउ तो दिस इज आर कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। तो 1 तक व्हेन एस इज ग्रेटर देन डेल्टा, ओके, तो केटी जब लेस देन 1 है, ठीक है, इस एरिया में क्या होगा? दिस स्लोप इज मोर देन 1, सो विल गेट अ स्टीपर लाइन। तो मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूं above this 45 degree line till 1। ओके, एंड आफ्टर दैट स्लोप कितनी आएगी? आफ्टर दैट स्लोप विल बी 1 माइनस डेल्टा। 1 के बाद वी हैव टू कंसिडर दिस इक्वेशन। ओके, और जब मैं उस इक्वेशन के लिए डिफरेंशिएट करूंगा, I'll get 1 minus delta, which is definitely less than 1, because delta is something between 0 and 1. So ये जो स्लोप आएगी, इट इज guaranteed to be less than 1। तो अगर ये less than 1 है, तो I'll get a flatter line जो guaranteed 45 डिग्री लाइन को कट करेगी। ओके, क्योंकि अब ये उससे फ्लैटर होने वाली है। सो आगे का जो पार्ट बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। ओके, ब्लैक लाइन से रेड लाइन फ्लैटर होगी, बिकॉज उसकी स्लोप अब लेस देन 1 हो गई। ठीक है, दिस इज द केस व्हेन kt इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, तो पहले स्लोप मोर देन 1 थी, बाद में स्लोप हो गई है लेस देन 1। तो पहले बना है स्टीपर 45 डिग्री से लाइन से ऊपर, एंड बाद में इट बिकम्स फ्लैटर बिकॉज स्लोप इज लेस देन 1। ओके, सो इस केस में वी हैव टू स्टेडी स्टेट्स। एक आ गया यहाँ पर 45 डिग्री लाइन को यहाँ टच कर रहा है, और यहाँ पर कट कर रहा है। सो वी हैव टू स्टेडी स्टेट्स। ओके, तो एक आ गया आपके पास k स्टार इक्वल टू 0, एंड दूसरा हम निकाल सकते हैं। ओके, सो k स्टार कहां पर आ रहा है? k स्टार के लिए for steady state what we know is kt plus 1 will be equal to kt will be equal to k star। okay, we know that। और यहां पर हम यूज करेंगे इस पार्ट को, क्योंकि ये वाला पार्ट कट कर रहा है 45 डिग्री लाइन को। सो दैट मींस विल बी कंसीडरिंग दिस इक्वेशन। ओके, दिस वन। सो 1 माइनस डेल्टा kt प्लस s, ये वाली इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं हम। सो k स्टार इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा k स्टार प्लस s। ओके, ये इक्वेशन है। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा k स्टार इज इक्वल टू सेविंग रेशियो। सो k स्टार इज इक्वल टू सेविंग रेशियो अपॉन डेल्टा। ओके, तो ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज आर k स्टार स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल विच इज इक्वल टू सेविंग रेशियो अपॉन डेल्टा। ओके, ओके, तो लेट्स इन्वेस्टिगेट कि इनमें से कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। ठीक है,
तो इस केस में वी हैव टू स्टेडी स्टेट्स. लेट मी चेक दिस वन कि अगर के स्टार 0 है तो वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल. सो इफ आई स्टार्ट समवेयर हियर, ठीक है, अगर मैं 0 के राइट से स्टार्ट करता हूँ, so let's say this is k0, so then my k1 I'll get it using capital accumulation equation का जो प्लॉट है उससे. so this is k1. now I फिर अब मुझे चाहिए k1 एज अ इन करंट पीरियड, सो मैं उसे लेकर जाऊंगा x एक्सिस पर, विल गेट k1 here. and now for the next period capital which is k2, again using this curve I'll get k2 here. so that means अगर मैं राइट में जाता हूं तो इकोनॉमी मूव कर रही है इस तरफ. ठीक है, ठीक है, इकोनॉमी वापस 0 की तरफ नहीं आ रही. दैट मीन्स कि यहाँ के स्टार इक्वल टू 0 स्टडी स्टेट तो है, बट इट इज नॉट स्टडी स्टेबल स्टडी सॉरी इट इज नॉट स्टेबल स्टडी स्टेट. ठीक है, स्टेबल होने के लिए अगर मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट ऑफ अ स्टडी स्टेट, इकोनॉमी वापस उसी तरफ आनी चाहिए. एंड हियर आई कैन सी कि इकोनॉमी उससे दूर जा रही है. ओके, so that means k star equal to 0 is a unstable steady state. Okay, and let's check s by delta. ठीक है, आप भी साथ में चेक कर सकते हो. सो के स्टार के लेफ्ट में मैं ऑलरेडी एक पॉइंट चेक कर चुका हूं. जब मैंने यहाँ पर के नोट लिया था, आई सॉ कि ये जो इकोनॉमी है इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, राइट. सो सेम चीज मैं कर सकता हूँ फ्रॉम द राइट. अगर के नॉट यहां पर होगा, ओके, देन k1 कहां पर आएगा, k1 विल बी here. ओके, तो अगर k1 यहां पर है, देन यूजिंग 45 डिग्री लाइन करंट पीरियड में k1 आ गया यहाँ पर. अब k2 के लिए आ गया, अगेन यूज दिस रेड लाइन, तो k2 आएगा यहाँ पर. सो आई कैन सी कि अगेन इकोनॉमी वापस जा रही है इस रेड पॉइंट की तरफ. ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स के स्टार. सो दैट मीन्स ये वाला जो स्टेडी स्टेट है इट इज स्टेबल स्टेडी स्टेट. So this is a stable steady state. Okay, so let's consider case number 2. तो केस नंबर 2 था हमारे पास दैट सेविंग रेशियो इज लेस देन डेप्रिसिएशन रेट, राइट. तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, इस केस में प्लॉट करता हूँ, तो दिस इज माय 45 डिग्री लाइन. सो kt इज इक्वल टू kt प्लस 1. ओके, यहाँ पर है kt, यहाँ पर है kt प्लस 1. सो टिल 1 स्लोप इज लेस देन 1. ओके, हम देख चुके हैं वो. तो ये जाएगी नीचे से. ओके, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स इवन मोर फ्लैटर. बाद में स्लोप हो जाती है 1 माइनस डेल्टा. तो ऐसे जाएगा. ओके, यहाँ से देख सकते हैं हम इसे. इनिशियली द स्लोप इज 1 माइनस डेल्टा प्लस एस. यहाँ पर स्लोप है 1 माइनस डेल्टा प्लस एस विच इज लेस देन 1. एंड बाद में स्लोप है 1 माइनस डेल्टा. एंड क्लियरली 1 माइनस डेल्टा प्लस एस इज ग्रेटर देन 1 माइनस डेल्टा. तो इसलिए बाद में ये कर्व और ज्यादा फ्लैट हो रहा है. ओके, और ये नीचे से निकल जाएगा. सो दैट मीन्स इस बार हमारे पास जो स्टडी स्टेट है वो सिंगल स्टडी स्टेट निकला इस केस में, विच इज के स्टार इक्वल टू 0. एंड टर्न्स आउट दैट दिस टाइम इट इज ऑल्सो स्टेबल. ये आप चेक कर सकते हो, इट इज अ स्टेबल स्टडी स्टेट. बिकॉज अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम
समथिंग टूवर्ड्स फ्रॉम द राइट ऑफ 0. ओके, तो क्या होगा इस केस में? नेक्स्ट टाइम आप आ जाओगे K2, अगर ये K0 है तो K1 आ गया यहाँ पर. Then using this 45 degree line, again K1 आ गया यहाँ पर. Now using this red line, I'll get K2 here. Now again using 45 degree line, this is K2. तो ये इकोनॉमी वापस 0 की तरफ जा रही है. Okay, so therefore K star equal to 0 is a stable steady state. ठीक है. तो जो केस नंबर 3 है, which is saving ratio is exactly equal to depreciation rate, वो आप साथ साथ ट्राई कर सकते हो. ओके, नाउ यू नो द प्रोसीजर. तो आप भी अपने आप एक बार ट्राई करोगे तो देन यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस कि ये कैसे चल रहा है यहाँ पर. बिकॉज मे बी आपने इस तरीके का जो प्रोडक्शन फंक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहली बार देखा होगा, तो बस कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. अदरवाइज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, so case number 3 is saving ratio is exactly equal to depreciation rate. Okay, and let me just write the capital accumulation equation once again here. So it is equal to 1 plus s minus delta into kt when kt is less than or equal to 1, and it is equal to 1 minus delta into kt plus s if kt is greater than 1. Okay, तो अब जब मैं इसे प्लॉट करूंगा, व्हाट आई नो इज कि जो अभी हम देख चुके हैं कि इनिशियली वो कोइंसाइड करेगा 45 डिग्री लाइन को, राइट. So when s is equal to delta, this thing gets cancelled out and slope is exactly equal to 1, right? So initially 1 तक वो करेगा coincide, and after that the slope is 1 minus delta, which is less than 1. तो उसके बाद ये हो जाएगा flatter. Okay, तो यहाँ पर slope है 1 minus delta, which is less than 1. यहाँ पर slope है equal to 1. Okay, so that means ये सारे points यहाँ पर steady states है. So this time K star is equal to belongs to 0 and 1. Any point between 0 and 1 or दोनों including, or you can say that K star is between 0 and 1. This ऐसे दोनों फॉर्म में से किसी में भी आप लिख सकते हो. ओके, ओके. So I can say that K star is equal to, basically मैं summarize कर रहा हूँ, S by delta if S is greater than delta. It is equal to 0 if S is less than delta, and it belongs to 0-1 interval if S is exactly equal to delta. ठीक है, तो यहाँ पर तीनों केसेस समराइज हो गए. ओके, so next thing is we need to talk about golden rule level of steady state. तो अभी तक मुझे ये पता है कि जो K स्टार है that clearly depends upon S. ओके, कि सेविंग रेशियो कितना है उसके हिसाब से यू गेट डिफरेंट K स्टार्स. ठीक है, बट क्या जो वेलफेयर है, ओके, क्या जो वेलफेयर है वो सिर्फ इस कैपिटल के लेवल पर डिपेंड करता है? वेल नो, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन. ठीक है, वेलफेयर सिर्फ इनकम पर या सिर्फ कैपिटल पर नहीं, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन कंजम्पशन. सो और क्योंकि एट फॉर डिफरेंट सेविंग रेशियोज देयर विल बी डिफरेंट K स्टार्स. ओके, तो अगर आपके पास डिफरेंट लेवल ऑफ कैपिटल स्टेट्स हैं तो एक ऐसा स्टेडी स्टेट कैपिटल भी होगा जहां पर यू कैन मैक्सिमाइज द कंजम्पशन. ठीक है, एक तरीके से यू वांट टू
मैक्सिमाइज द वेलफेयर। तो अगर आपको वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए मैं एक ऐसा स्टेडी स्टेट ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, वेयर कंजम्पशन इज मैक्सिमम। तो उस स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल को हम कहते हैं गोल्डन रूल लेवल ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है। So golden rule basically means we need to maximize the consumption. Okay. So let's note this down. Welfare depends not just on income, but also on consumption. Right? And for different S, yani for different saving ratios, we get different K stars. ठीक है, हर सेविंग रेशियो के लिए यू विल गेट अ डिफरेंट steady state level of capital, and that's because K star depends on S. Okay. So अगर मेरे पास डिफरेंट S के लिए डिफरेंट K स्टार है तो एक उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कंजम्पशन भी निकल कर आएगा, ठीक है। अगर आप सेविंग रेशियो चेंज करोगे, वी नो दैट कंजम्पशन इज इक्वल टू 1 माइनस S इंटू वाई, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट सेविंग रेट यू विल गेट अ डिफरेंट steady state rate of steady state level of capital, and then you'll get a corresponding level of consumption, right? So we can get corresponding consumption at K star S, ठीक है। K star is a function of S, तो हर K star के लिए you can get a corresponding level of consumption. तो ऐसा सेविंग रेट जहां पर हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो हाईएस्ट हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे गोल्डन रूल लेवल ऑफ स्टेडी स्टेट। सो द सेविंग रेट at which per capita consumption, तो हम एग्रीगेट लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पर वर्कर, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी के अंदर लेट से 100 लोग हैं तो आप सिर्फ अगर एक ही के पास एक ही सब कुछ कंज्यूम करा, देन दैट्स नॉट समथिंग वी वांट, ठीक है। वी वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स इन पर कैपिटा टर्म्स, कि पर वर्कर वो अमाउंट कितना है, नॉट जस्ट कि ओवरऑल कितना है, ओके। सो पर कैपिटा गिव्स अ बेटर पिक्चर देन एग्रीगेट। पर कैपिटा मीन्स सिंपली कंजम्पशन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, ओके। सो और यहाँ पर हमें फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है कि L इज इक्वल टू 1, बट इन जनरल वी नीड टू टॉक अबाउट पर कैपिटा। सो द सेविंग रेट एट विच पर कैपिटा कंजम्पशन इज हाईएस्ट एट स्टेडी स्टेट is called golden rule level of steady state, ओके। सो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट पर आपके पास इनकम कितनी होगी। सो दिस इज माय एग्रीगेट इनकम इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर वाई स्टार लगाया। सो इट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ के एंड एल, ओके। के की जगह मैं लगाऊंगा के स्टार बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, कॉमा 1 बिकॉज एल इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास एग्रीगेट इनकम एट स्टेडी स्टेट हो जाएगी इक्वल मिनिमम ऑफ के एंड एल वेयर के इज के स्टार बिकॉज मैं स्टेडी स्टेट पर बात कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे क्योंकि मेरे पास डिफरेंट केसेस में डिफरेंट स्टेडी स्टेट्स है। सो व्हेन एस इज ग्रेटर देन डेल्टा, उस केस में वाई स्टार कितना आएगा। So in that case, y star will be equal to minimum of
तो एस ग्रेटर देन डेल्टा के केस में आपके पास के स्टार था कितना, एस बाय डेल्टा, ठीक है। तो इस केस में के स्टार है एस बाय डेल्टा, तो ऑब्वियसली फिर हर केस में यूल गेट अ डिफरेंट इनकम लेवल, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट। तो पहले केस के अकॉर्डिंग इट विल बी एस बाय डेल्टा कॉमा 1, ओके, एंड we are taking the case where s is greater than delta, so that means this is greater than 1, minimum of greater than 1 and 1 is 1, तो ये आ जाएगा 1, okay। Second case when s is less than delta, तो जब s less than delta है उस टाइम पर k स्टार था 0, okay, so y star will be equal to minimum of k star comma 1 which is equal to minimum of 0,1, ठीक है, क्योंकि इस केस में के स्टार आया था 0 एंड मिनिमम ऑफ 0 एंड 1 इज 0, ओके। सो दैट्स माय सेकंड केस, एंड इन द लास्ट केस वेयर एस इज इक्वल टू डेल्टा, वाई स्टार विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ के स्टार एंड 1, और इस केस में के स्टार कितना था, इस केस में के स्टार था, इट बिलोंग टू द इंटरवल बिटवीन 0 एंड 1, राइट। सो वी नो दैट इस केस में के स्टार है बिटवीन 0 एंड 1, सो आई कैन से कि मिनिमम आएगा के स्टार, ठीक है। अगर इक्वल टू 1 हो गया तो भी के स्टार ही है, ठीक है। अगर के स्टार इक्वल टू 1 है तो मिनिमम 1 एंड 1 इज 1, तो के स्टार अपने आप 1 वैल्यू ले लेगा। अगर वो 0 हुआ तो भी मिनिमम 0 आ जाएगा, तो के स्टार ही एक तरीके से बाहर आ रहा है। एंड एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1 तब भी के स्टार इज लेस देन 1, तो तीनों ही केसेस में you'll get k star out of this function, okay, and that's because it is between 0 and 1, ठीक है। तो आपको पता है कि कंजम्पशन इज इक्वल टू 1 माइनस सेविंग रेशियो इनटू y, ओके। हम देख रहे हैं चीजें एट स्टेडी स्टेट, सो आई वांट स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कंजम्पशन फॉर डिफरेंट सेविंग रेट्स, ओके। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने y स्टार निकाला, राइट। तो इन समरी y star is equal to 1 if s is greater than delta, it is equal to 0 if s is less than delta, and it is equal to k star if s is exactly equal to delta. Now using this y star I can find c star, right? So c star will be equal to 1 minus saving ratio into y star, which is equal to, तो तीनों केसेस के लिए मैं इसे निकाल सकता हूँ। y स्टार की तीन वैल्यूज है हमारे पास, राइट। तो पहले केस के लिए आ जाएगा 1 माइनस एस इंटू 1 इफ एस इज ग्रेटर देन डेल्टा, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अब 0 है तो सेकंड केस के लिए इट विल बी 0 1 माइनस एस इंटू 0 इफ एस इज लेस देन डेल्टा, और थर्ड केस के लिए इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू के स्टार इफ एस इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। तो वाई स्टार का यूज करके मैंने यहाँ पर सी स्टार निकाला, ओके। हमें करना क्या है, वी नीड टू मैक्सिमाइज द कंजम्पशन, ओके। तो मैं इसे प्लॉट करके देख सकता हूं कि सी स्टार किस लेवल ऑफ सेविंग रेशियो के लिए मैक्सिमम, राइट। सो आई हैव दिस कंजम्पशन फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन सेविंग रेशियो। अब इसका यूज करके मैं निकाल सकता हूं कि कंजम्पशन मैक्सिमम कहां पर है। सो मैं इसे ड्रॉ करूंगा विद रिस्पेक्ट टू सेविंग रेशियो। आई नीड टू सी कि कंजम्पशन मैक्सिमम कहां पर है, ओके। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि थ्रेशोल्ड डेल्टा है, ओके। तो यहाँ पर मैं कहीं डेल्टा लिख देता हूँ। व्हाट आई ऑल्सो नो इज कि सेविंग रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ओके, और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है। सो व्हेन एस इज लेस देन डेल्टा, ये वाला केस, ओके, हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। सो व्हेन एस इज लेस देन डेल्टा, उस टाइम पर
C star is equal to 0. So C star is equal to 0 कब तक? जब S is less than delta. यहाँ पर एक्सिस पर लिखा हुआ है सेविंग रेशियो, तो यहाँ पर हर जगह हम बात कर रहे हैं सेविंग रेशियो की. सो दैट मीन्स ये वो वाला एरिया है जहां पर S is less than delta. ओके, इस तरीके से देखते हैं इसे. नेक्स्ट, what if when S is exactly equal to delta? Okay, so in that case C star is equal to 1 minus S into K star. What we know is that K star is something between 0 and 1. Okay, तो अगर ये 0 हुआ then this thing will become 0. ठीक है, अगर 0 हुआ. अगर ये 1 हुआ then we'll reach 1 minus S इस पॉइंट पर. ठीक है, when K star is 1 तो हम आएंगे इस पॉइंट पर. एंड और अगर K star हुआ एनीथिंग इन बिटवीन 0 and 1 तो आप आओगे यहाँ पर. ठीक है, सो इट्स समथिंग लाइक 1 minus S into 0 के लिए आपको ये वाला पॉइंट मिला है. 1 minus S into 1 के लिए आपको ये वाला पॉइंट मिला है. और क्योंकि वहां पर S is equal to delta तो आई कैन राइट इट एज 1 minus S equal to 1 minus delta. ठीक है, दोनों एक ही बात है क्योंकि इस केस में S is equal to delta. एंड फॉर एनीथिंग इन बिटवीन लेट्स से 0.5 तो आपको कोई मिलेगा पॉइंट यहाँ पर. सिमिलरली इफ इट इज 0.6 तो वो पॉइंट आ जाएगा कुछ यहाँ पर. तो देयरफॉर यहाँ पर मुझे एक वर्टिकल लाइन मिल गई. सो कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K स्टार यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस वर्टिकल लाइन. तो इसलिए फाइनली एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर क्रिएट हो गई. ठीक है, एंड द नेक्स्ट केस इज व्हेन S इज मोर देन डेल्टा. ओके, इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास फंक्शन है 1 minus S. ठीक है, तो व्हेन S इज इक्वल टू 1 C स्टार हो जाएगा 0. ठीक है, व्हेन S इज इक्वल टू 1, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, तो उस केस में वो बन जाएगा 0. एंड व्हेन इट इज इक्वल टू डेल्टा विल गेट 1 minus डेल्टा. तो शुरुआत होगी यहाँ से और एंड होगा यहाँ पर. ठीक है, इस लाइन की जो स्लोप है, इफ वी डिफरेंशिएट कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू सेविंग रेशियो विल गेट -1. तो इस लाइन की जो स्लोप है वो -1 है, इसलिए मैंने इसे डिक्रीजिंग बनाया और मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकाल लिए एक्सिस पर. व्हेन S इज इक्वल टू 1, जब आप S की जगह 1 रखोगे यू विल गेट 0. तो आप आ गए इस पॉइंट पर. ठीक है, S ग्रेटर देन डेल्टा वाला केस एक बार फिर से देख लो. सो S ग्रेटर देन डेल्टा के केस में कर्व है आपके पास, इक्वेशन है आपके पास C स्टार इक्वल टू 1 minus S. ओके, तो अगर मैं उसे डिफरेंशिएट करूं आई विल गेट -1. दैट मींस यहाँ पर जो भी ये प्लॉट होगा वो डिक्रीजिंग है और इसकी स्लोप है -1. ठीक है, और इसके अलावा मैंने क्या निकाला यहाँ पर, एंड ऑब्वियसली इट इज कांस्टेंट तो एक स्ट्रेट लाइन भी बन रही है. तो एक डिक्रीजिंग -1 स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, इतना मुझे पता है. व्हाट एल्स, मुझे ये चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर टच करने वाली है, एक्सिस पर ये कहाँ टच कर सकती है. तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली कि 1 पर क्या होगा. ओके, तो व्हेन आई टेक S इक्वल टू 1, यहाँ पर मैं S की जगह 1 पुट करूंगा. अगर C स्टार इज इक्वल टू 1 minus S, तो जब मैं S लूंगा 1 आई गेट 0. ठीक है, तो C स्टार यहाँ पर 0 है तो मुझे एक पॉइंट यहाँ मिल गया. व्हाट आई ऑल्सो कैन चेक इज S अगर इक्वल टू डेल्टा होगा तो क्या मिलेगा मुझे. ठीक है, इन दैट केस आई गेट 1 minus डेल्टा और मुझे पता है वो पॉइंट यहीं पर है, तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया. तो मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया -1 की स्लोप पर डिक्रीजिंग लाइन. ठीक है, और स्ट्रेट लाइन दोनों को ज्वाइन करके मिल गई. ठीक है, ओके. तो अब मुझे C स्टार मिल चुके हैं सारे, मैंने उसका प्लॉट भी कर लिया है. तो मुझे अब यहाँ से मिल जाएगा कि कंजम्पशन मैक्सिमम कहाँ पर है. ये सारी स्टेडी स्टेट कंजम्पशन लेवल्स हैं. ठीक है, मुझे निकालना है गोल्डन रूल लेवल पर. तो वो कौन सा है जहां पर ये मैक्सिमम हो. मैक्सिमम मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर. ठीक है, कंजम्पशन की मैक्सिमम वैल्यू, कंजम्पशन आप देख रहे हो वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है. दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है विच इज इक्वल टू 1 minus डेल्टा. ओके,
और ऐसा किस सेविंग रेट के लिए हो रहा है? ऐसा हो रहा है सेविंग रेट जब डेल्टा के इक्वल है तब हो रहा है ऐसा. तो दैट मीन्स एस स्टार जी, ओके, गोल्डन रूल लेवल ऑफ सेविंग रेट, ओके, वो आ गया इक्वल टू डेल्टा. दैट्स माय फर्स्ट थिंग. और ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब आपके पास कैपिटल है इक्वल टू 1. तब हुआ था ऐसा जब के स्टार एग्जैक्टली इक्वल टू 1 था, तब आपको मिली है ये वैल्यू. करेक्ट? जब के स्टार 1 था तब हमें मिली है ये वैल्यू. सो इसीलिए गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल एट स्टेडी स्टेट इज 1. ओके, सी स्टार जी कितना आ जाएगा? सी स्टार जी यानी मैक्सिमम कंजम्पशन स्टेडी स्टेट में कितनी? इट इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा. ओके, तो ये 3 वैल्यूज आ गई आपके पास. ठीक है, ये आपसे ये आप यही चीजें आपको एग्जाम में निकालने को बोली जाएंगी कि एस स्टार जी बताओ, पी स्टार जी बताओ, सी स्टार जी बताओ. ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे लेवल ऑफ स्टडी स्टेट कैपिटल हो सकते हैं, बट द मोस्ट डिजायरेबल, ठीक है, जिसे आप बेस्ट कह सकते हो, वो स्टडी स्टेट होता है गोल्डन रूल वाला, बिकॉज वहां पर कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो जाती है. सो यू कैन से दैट के स्टार जी एंड सी स्टार जी, दिस इज बेस्ट और मोस्ट डिजायरेबल स्टडी स्टेट, बिकॉज यहाँ पर वेलफेयर मैक्सिमाइज हो रहा है. ठीक है, सो इस प्रोडक्शन फंक्शन का यूज करके तो हमने यहाँ पर गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल एट स्टेडी स्टेट निकाल लिया. बट लास्ट टाइम हमने यूज किया था कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, राइट? तो व्हेन लास्ट टाइम वी हैड production function equal to LT to the power half, KT to the power half, okay, and we had LT equal to 1 for all T, which means कि आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन था KT to the power half, right? तो इस केस में गोल्डन रूल लेवल ऑफ स्टेडी स्टेट क्या होगा? ठीक है, वो निकाल लेते. सो लास्ट टाइम स्टेडी स्टेट हमने निकाला था एस अपॉन डेल्टा स्क्वायर. ठीक है, इफ यू रिमेंबर के स्टार हमने निकाला था एस बाय डेल्टा होल स्क्वायर. मुझे करना है कंजम्पशन को मैक्सिमाइज. ओके, कंजम्पशन निकालने के लिए मुझे चाहिए वाई स्टार. ठीक है, वी नीड इनकम. तो इनकम या आउटपुट एट स्टेडी स्टेट वो कितना आ जाएगा? उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर के स्टार पुट कर दूंगा. ओके, बिकॉज दिस इज वाई. इफ आई वांट वाई स्टार then I just need to find the value of this production function at k star. Okay, so this is equal to s by delta squared to the power half. ठीक है, मैंने यहाँ पुट कर दिया kt की जगह k star. So I'll get s by delta. ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया y star. Now I need c star. गोल्डन रूल, और यहाँ पर अभी मैं निकाल रहा हूँ कंजम्पशन एट स्टेडी स्टेट. ठीक है, तो कंजम्पशन एट स्टेडी स्टेट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू वाई स्टार, which will be equal to 1 minus s into s by delta, okay, which is equal to s by delta minus s square by delta. Okay, अब मुझे अपने कंजम्पशन को करना है मैक्सिमाइज, which I can do using differentiation. Okay, so it will be equal to 1 minus delta minus 2s upon delta equated to 0. So this implies s is equal to 1 by 2, and in fact this is golden rule level of saving ratio. Okay, तो आपके पास s या s star g लिख सकते हो इसे. तो s star g आ गया हाफ, and using this I can find golden rule level of steady state capital. आपके पास स्टेडी स्टेट कैपिटल है
ये गोल्डन रूल कब बनेगा? व्हेन यू विल यूज द सेविंग रेशियो जहां पर कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो रही है। तो यहाँ पर मैं एस की जगह पुट कर दूंगा एच जी, राइट? सो आई विल गेट 1/2 अपॉन डेल्टा, यानी 1/2 डेल्टा स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 डेल्टा होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं एस स्टार जी पुट कर दूंगा के स्टार में, आई विल गेट के स्टार जी। ओके, एंड सिमिलरली आई कैन गेट सी स्टार जी। तो जब मैं यहाँ पर एस की जगह पुट कर दूंगा 1/2, ये चीज हो जाएगी 1/2, ये भी 1/2, ये हो गया 1/4 डेल्टा। सो 1 माइनस 1/2, 1/2 अपॉन डेल्टा विच इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा। ठीक है, सो अभी तक हमने लेबर फोर्स की जो ग्रोथ थी वो कंसिडर नहीं की थी। ठीक है, आई अज्यूम कि लेबर इज इक्वल टू 1। ओके, so now we need to incorporate population growth rate. Okay, so let's now incorporate population growth rate in this model. So अभी तक हमने क्या देखा है? That we are given a production function, we have a saving ratio, we have depreciation rate, we have some initial level of capital as our endowment. Okay, और अब L0B is something positive, and not just that, नेक्स्ट पीरियड की जो लेबर है, लेबर स्टॉक है, इट इज इक्वल टू प्रीवियस पीरियड्स लेबर स्टॉक प्लस एन इंटू एल टी। ठीक है, एन के रेट से ये चीज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो लेबर स्टॉक इंक्रीजेस ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एट अ कांस्टेंट रेट एन। तो यहाँ पर जो ये एन है वो एक कांस्टेंट, सो दैट रेट इज एन विच इज समथिंग पॉजिटिव। ठीक है, सो अब मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विच इज एन। सो अब ये मेरी कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन में क्या चेंजेस लेकर आएगा वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अर्लियर एल टी वॉज इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर ऑल टाइम पीरियड्स, बट नाउ लेबर स्टॉक जो है वो ग्रो कर रहा है। ओके, तो वी नीड टू कंसिडर दैट इन आवर कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। तो अर्लियर वी हैड एल के टी प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा के टी प्लस एस इंटू एफ के टी एल टी, राइट? ओके, पहले क्या हो रहा था? एल टी इक्वल टू 1 था। तो अगर मैं एग्रीगेट कैपिटल की बात करूं या कैपिटल पर वर्कर की बात करूं, दोनों सेम आ रहे थे, राइट? क्योंकि एल टी 1 है। तो पहले कैपिटल पर वर्कर और एग्रीगेट कैपिटल दोनों इक्वल थे। एंड एज आई सेड वी नीड टू talk about things in per capita terms, per worker terms, because that gives a better picture. Okay, so अब जब हम स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट कैपिटल, विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेडी स्टेट कैपिटल पर कैपिटा या फिर स्टेडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर। ठीक है, वी नीड टू फाइंड स्टेडी स्टेट कैपिटल पर कैपिटा या पर वर्कर। ओके, so we have kt plus 1 equal to 1 minus delta into kt plus s into f kt lt। ये मेरी कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन थी। नाउ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय lt। ठीक है, मुझे चीजें चाहिए
पर कैपिटा टर्म्स में। ओके, तो यहां से आती है मेरी वन ऑफ द अजम्पशंस जो हम प्रोडक्शन फंक्शन के लिए सोलो मॉडल में यूज करते हैं। एंड व्हाट दैट अजम्पशन, इस चीज को सॉल्व करने के लिए वी नीड एन अजम्पशन। तो द अजम्पशन इज दैट प्रोडक्शन फंक्शन is homogeneous of degree 1। ठीक है, और we can say that it has a constant returns to scale। ठीक है, क्या होता है ये, इसे ये assumption हम क्यों यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, so if I have a production function which depends on capital and labor। ओके, और अगर मैं इस कैपिटल और लेबर को किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन से इंक्रीज या डिक्रीज करूं, ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई kt बाय लैम्डा एंड lt बाय ऑल्सो लैम्डा, तो हमारा जो पूरा आउटपुट है, जिस प्रोपोर्शन में आपने lt और kt को इंक्रीज किया है उसी प्रोपोर्शन में आपका ओवरऑल आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब हम कहते हैं दैट दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 1, या फिर इट हैज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जिस प्रोपोर्शन में आपने इनपुट को इंक्रीज करा है उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो इस अजम्पशन को हम क्यों लेते हैं, द रीजन इज वी वांट टू से कि इकोनॉमी में भी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, हो सकता है देयर आर सम लार्ज प्रोडक्शन हाउसेस, देयर आर सम स्मॉल प्रोडक्शन हाउसेस। तो हम ये नहीं कह रहे कि जब ये लोग बड़े प्रोडक्शन हाउसेस अगर लेट्स से अपने इनपुट्स ट्वाइस कर रहे हैं, ठीक है, if they multiply their capital and labor by 2, if they double their use of capital and labor, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए जो आउटपुट होगा वो मोर देन डबल आ जाए। ठीक है, कि उनके पास जो मशीनरी है, उनके पास जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, तो उनके आउटपुट ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर ये लोग अपना इनपुट डबल करेंगे तो इनका भी आउटपुट डबल ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई स्मॉल प्रोडक्शन हाउस अपना इनपुट को डबल कर रहा है तो इनका भी आउटपुट डबल ही होगा, उससे कम नहीं रह जाएगा। दोनों के पास जो टाइप की मशीनरी है, दोनों के पास जिस लेवल के लेबर है, वर्कर्स हैं, उनमें डिफरेंस नहीं। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी गुड अजम्पशन। ठीक है, ताकि हम ओवरऑल लेवल पर इकोनॉमी को एवरेज लेवल पर देख पाए। ठीक है, अगर दोनों में डिफरेंसेस रहेंगे कि लार्ज प्रोडक्शन हाउसेस में के पास जो मशीनरी है, जो लेबर है, वो डिफरेंट लेवल की है, दूसरे प्रोडक्शन हाउस के पास, छोटे प्रोडक्शन के पास अलग है, तो दैट माइट क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशंस और उसको हैंडल करना और मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज अ गुड अजम्पशन। ठीक है, और इसका हमें बेनिफिट मिलेगा सॉल्व करते हुए। ओके देन, सो इसे मैं इस अजम्पशन का यूज करने वाला हूं। यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ जो मैंने लैम्डा यूज किया, इफ दिस लैम्डा इज इक्वल टू 1/LT तो क्या होगा, तो देन एफ लैम्डा की जगह आ गया, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, लैम्डा की जगह आ जाएगा 1/LT KT, लैम्डा की जगह 1/LT इंटू LT, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा की जगह 1/LT एफ ऑफ KT LT। ओके, सो यहाँ मुझे मिल जाएगा एफ ऑफ KT/LT कॉमा 1, इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ KT LT डिवाइडेड बाय LT। ठीक है, सो नाउ बेसिकली KT/LT ये क्या है, दिस इज कैपिटल लेबर रेशियो, या फिर मैं कह सकता हूँ कैपिटल पर वर्कर या कैपिटल पर कैपिटा। ओके, एंड लेट्स से इसका सिंबल हम ले लेते हैं स्मॉल के। ठीक है, इसको मैं एक नया सिंबल दे रहा हूँ स्मॉल के,
So I can say this is, now it is a function of capital labor ratio. Okay. So this is equal to f of kt lt by lt. ठीक है. And now again मैं इसका नाम चेंज करके I can say that this is a function of capital labor ratio. Okay, अब मैं चीजें हम चली गई है सारी पर कैपिटा टर्म्स में. ओके, सो स्मॉल एफ, नाउ मैंने बस फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है. तो कैपिटल एफ की जगह अब नाम हो गया स्मॉल एफ एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो. वन एक कांस्टेंट है तो वी कैन इग्नोर दैट. ठीक है, अगर कोई फंक्शन है वो किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है और वो कांस्टेंट है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वी नीड नॉट टू कंसिडर इट अगेन, क्योंकि जब वो चीज चेंज ही नहीं हो सकती तो फिर वो फंक्शन को अफेक्ट भी नहीं करेगी. तो इसलिए मैं यहाँ पर वन को इग्नोर कर सकता हूँ. ओके, सो एफ ऑफ के टी, स्मॉल एफ ऑफ के टी इज इक्वल टू एफ के टी एल टी डिवाइडेड बाई एल टी. ठीक है, तो इसका मैं यूज कर सकता हूँ अपनी कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन में. ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास, तो ये जो पार्ट है इसे मैं लिख सकता हूं स्मॉल एफ ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो. करेक्ट, इसे मैं लिख सकता हूं स्मॉल के टी. ठीक है, so I can write it as kt plus 1 upon lt equal to 1 minus delta into small kt plus s into f of small kt. ठीक है, ये कैपिटल लेबर रेशियो. What we also know is that lt plus 1 is equal to 1 plus n into lt, which means lt is equal to lt plus 1 upon 1 plus n. ओके, इसका मैं यूज करूंगा यहां पर. So I can write it as kt plus 1 upon lt plus 1 upon 1 plus n is equal to 1 minus delta into kt plus s into f of कैपिटल लेबर रेशियो. ये है कैपिटल लेबर रेशियो एट टाइम पीरियड t. सिमिलरली ये हो जाएगा कैपिटल लेबर रेशियो एट टाइम पीरियड t प्लस 1. करेक्ट, अगर ऊपर kt प्लस 1 है तो मुझे कैपिटल लेबर रेशियो के लिए जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो वो भी उसी टाइम पीरियड का होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे कन्वर्ट किया था. ठीक है, इसे या इस पार्ट को मैं नहीं लिख सकता कैपिटल लेबर रेशियो, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल है वो t प्लस 1 पीरियड की है और जो लेबर है वो tth पीरियड की है. दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम होना चाहिए. राइट, सो आई कैन राइट इट एज 1 प्लस n इंटू कैपिटल लेबर रेशियो एट टाइम पीरियड t प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा इंटू कैपिटल लेबर रेशियो प्लस s इंटू f ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो. so this is my new capital accumulation equation. ठीक है, एंड इट इज इन पर कैपिटा टर्म्स. ओके, तो ये जो पूरी डेरिवेशन है ये बहुत काम की चीज है. एट टाइम्स एट बड़े एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अगर आपको डिराइव करना नहीं आता तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे. ओके, एंड सोलो मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट from the perspective of all the institutes, not just DSC or ISF. Okay, so YT है हमारे पास KT to the power half, LT to the power half, right? Initial level of capital and labor is something positive. We have LT plus 1 is equal to 1 plus n into LT, कि वो grow कर रहा है at a constant rate. We have depreciation rate which is something positive. We have saving ratio which is something positive, and we have population growth rate which is something positive. ठीक है, we need to find steady state. Okay, so now FLT-KT is equal to KT to the power half LT to the power half. You can check कि ये constant, इसके जो returns हैं they are constant. कैसे? So if I take lambda LT instead of LT and lambda KT instead of KT, ठीक है, अगर मैं इसे lambda proportion से दोनों को increase करता हूँ, then I'll get lambda LT to the power half lambda KT to the power half, इंटरचेंज कर देना इन्हें,
then it is equal to lambda LT to the power half KT to the power half, which is equal to lambda into F of LT and KT. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेबर और कैपिटल को एक सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा हूँ तो टोटल आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है. दैट मीन्स दिस इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 1. ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड दिस. ठीक है, वी नीड टू फाइंड दिस प्रोडक्शन फंक्शन इन per capita terms. So for that I'll divide aggregate output by number of workers. Okay, so I'll get KT to the power half by LT to the power half, which is equal to small kt to the power half. So under root capital labor ratio. This is output per capita. Okay. तो यहां तक आगे हम क्यों निकाला हमने इसे, ताकि मैं इसे यूज कर पाऊं अपनी इक्वेशन में. वी नीड एफ ऑफ kt. ठीक है, दिस इज स्मॉल एफ. तो इक्वेशन है हमारे पास कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन, या यूज करके आई कैन से दैट 1 प्लस एन इंटू kt प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा इंटू kt प्लस s इंटू एफ ऑफ kt विच इज kt टू द पावर हाफ. ठीक है, दिस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ दिस. ओके, तो ये आ गई मेरी कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन. ओके, so now I can solve it for steady state, right? So for steady state, what we know is that capital labor ratio in time period t plus 1 will be equal to capital labor ratio in time period t, and it should be equal to k star. Okay, so 1 plus n k star is equal to 1 minus delta into k star plus saving ratio into k star to the power half. Okay, so n k star will be equal to in fact not just n plus delta k star will be equal to saving ratio into k star to the power half. So k star upon k star to the power half will be equal to saving ratio upon n plus delta. So this implies k star will be equal to s upon n plus delta whole square, right? तो ये आ गया मेरा स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो, स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा. सो आई कैन से, क्योंकि एन और डेल्टा दोनों डेनोमिनेटर में अगर वो इंक्रीज हुए, दैट मींस जो मेरा स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा है वो रिड्यूस हो जाएगा. स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा reduces, right? एंड क्योंकि सेविंग रेशियो न्यूमरेटर में है, सो आई कैन से कि मेरा जो कैपिटल पर कैपिटा है स्टडी स्टेट में, इट विल इंक्रीज अगर सेविंग रेशियो इंक्रीज होता है, राइट? तो अगर सेविंग रेशियो इंक्रीज होगा तो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा इंक्रीज होगा. ओके, स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा या पर वर्कर इंक्रीजेस. ठीक है,
ओके, अगर मुझे देखना हो आउटपुट कर पर कैपिटा कि उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आउटपुट पर कैपिटा मींस वाई टी अपॉन एल टी, राइट, जो मैं निकाल चुका हूं पहले, इट इज इक्वल टू के टी टू द पावर हाफ. ओके, एंड आई वांट टू फाइंड growth rate of output per capita at steady state. ठीक है, another question that you can be asked is कि आउटपुट पर कैपिटा स्टडी स्टेट में इसका ग्रोथ रेट क्या है. तो अगर मुझे किसी भी चीज का ग्रोथ रेट निकालना है ओवर टाइम, तो वो कैसे निकालते हो आप, नेक्स्ट पीरियड में उसकी वैल्यू कितनी है माइनस करंटली उसकी वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय करंटली उसकी वैल्यू कितनी है, विच इज इक्वल टू वाई टी प्लस वन अपॉन वाई टी माइनस वन. ओके, विच इज इक्वल टू वाई टी प्लस वन की जगह मैं लिख सकता हूँ के टी प्लस वन टू द पावर हाफ. ओके, यूजिंग दिस divided by kt to the power of minus 1, right? What we know is that at steady state kt plus 1 is equal to kt, right? So that means growth rate है ये which will be equal to 1 to the power half minus 1 which is equal to 0. So growth rate जो आउटपुट पर कैपिटा की है सेल स्टेट में, इट इज 0 की, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पर कैपिटा की. सो स्टडी स्टेट के टाइम पर कैपिटल पर कैपिटा और आउटपुट पर कैपिटा दोनों की ही ग्रोथ रेट होती है 0 विच इज अ कांस्टेंट. ओके, विच सिंपली मींस आप इकोनॉमी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जा रही है सिर्फ डेप्रिशिएटेड कैपिटल को रिपेयर करने में. ठीक है, देयर इज नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, पर कैपिटा टर्म्स में भी बात हो रही है, उतनी ही इन्वेस्टमेंट हो रही है जिससे कि जितना भी वियर एंड टियर हुआ है वो रिप्लेस कर सको आप. Okay, so this implies growth rate of output per capita at steady state is equal to 0. आप कह सकते हो that in steady state per capita income does not grow, or you can say that per capita income grows at a constant rate of 0, right? Now we are interested in knowing कि growth rate of aggregate output कितना होगा. पर कैपिटा टर्म्स में तो हमें दिख रहा है कि इट इज 0, बट व्हाट अबाउट ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट. ओके, देखो कैलकुलेट करते. नाउ वी वांट टू सी ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट कैपिटल एट स्टेडी स्टेट. ठीक है, पहले कैपिटल देखते हैं फिर आउटपुट की बात करते हैं. तो अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो उसका ग्रोथ रेट आ जाएगा के टी प्लस वन माइनस के टी अपॉन के टी. ओके, बट ये एग्रीगेट लेवल पर है. ठीक है, व्हाट वी नो इज दैट
KT प्लस 1 माइनस KT अपॉन KT, ये 0 आएगा क्योंकि स्टडी स्टेट में KT कैपिटल लेबर रेशियो एट टाइम पीरियड T प्लस 1 एंड कैपिटल लेबर रेशियो एट टाइम पीरियड T वो इक्वल होते हैं. ओके, थिंग्स आर इन पर कैपिटा टर्म्स, तो ये होता है 0. So I can say that KT plus 1 upon KT is equal to 1. Okay, so I can say that KT plus 1 upon LT plus 1 divided by KT upon LT. ठीक है, because small KT plus 1 is equal to capital KT plus 1 upon LT plus 1. इसका यूज किया मैंने, so this is equal to 1, which means KT plus 1 upon KT into LT upon LT plus 1 is equal to 1. This implies KT plus 1 upon KT is equal to LT plus 1 upon LT, which is equal to 1 plus n into LT upon LT, which is equal to 1 plus n. Okay, तो कैपिटल KT plus 1 upon KT इक्वल आ रहा है 1 plus n के. So इसका मैं यूज कर सकता हूं यहाँ पर. तो KT plus 1 upon KT minus 1 which is equal to 1 plus n minus 1 which is equal to n. ठीक है, तो एग्रीगेट कैपिटल ग्रो करेगा एट द रेट ऑफ n, क्योंकि और कोई सोर्स ही नहीं है कैपिटल के इंक्रीज होने का यहाँ पर. द ओनली सोर्स ऑफ ग्रोथ फॉर एग्रीगेट कैपिटल इज लेबर फोर्स ग्रोथ. ठीक है, now what about growth rate of aggregate output at steady state? ये आप ट्राई करो. इस बार हमें निकालना है YT प्लस 1 माइनस YT अपॉन YT. ठीक है, एंड YT क्या है ये आपको पता है. So using this you can calculate कि exactly ये growth rate of aggregate output कितना है. So this will be equal to YT plus 1 upon YT minus 1. YT plus 1 कितना आ जाएगा? YT हमें पता है KT की पावर हाफ इंटू LT की पावर हाफ है, तो ये आ जाएगा KT plus 1 to the power half LT plus 1 to the power half upon KT to the power half into LT to the power half minus 1. Okay, so this will be equal to KT plus 1 upon KT to the power half, and this will be equal to LT plus 1 upon LT to the power half minus 1. ये पार्ट अभी हमने निकाला था, ये आया था 1 plus n, है ना. ये पार्ट अभी हमने निकाला था, आया था 1 plus n. So this will be equal to 1 plus n to the power half. Similarly, ये भी हमें पता है आएगा 1 plus n. ये पार्ट यूजिंग दिस वी नो LT plus 1 upon LT भी आएगा 1 plus n, तो ये भी आ गया 1 plus n to the power half minus 1. So this will be equal to 1 plus n minus 1 which will be equal to
n. Okay, so that means aggregate income and aggregate capital in steady state grow at the rate equal to n, right? So one thing that you can try on your own is when YT is equal to min of KT and LT and लेबर फोर्स ग्रो कर रही है, ठीक है, नए सेटअप के साथ विद न्यू कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन, इस केस में स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा क्या आएगा, दैट यू कैन चेक. स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा, ऑब्वियसली फिर से यहाँ पर केसेस बनेंगे एंड यू कैन प्रैक्टिस कि वो केसेस कैसे बनेंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा. लेवल ऑफ कैपिटल पर कैपिटा and then we'll discuss some past year problems. Okay, then see you in next class.